I would like to reintroduce myself. My name is Oas Nanda. I'm an academician. To call myself an activist would not be right because activists have a lot of responsibility. I'm an academic. I teach. I teach public administration. I have taught in Kashmir University. I have taught HR. I teach in a school, and I give talks across colleges and universities. Uh, Before I speak here in front of this August gathering, I'm very thankful that you have called me here. I want to, at the outset, say some certain things. My name is Oas Nanda and I'm not an agent. Please understand this thing. Anybody who speaks in Kashmir is an agent of this fence or this fence. I am not an agent. I'm an academic, and I've been invited here. I'm talking. There's something in our constitution called Article 19, which gives freedom of speech and expression, and there's something called human right, which is innate, and that gives me the right to talk. And I'm here to talk, and I will talk my mind. You may agree with it. You may disagree with it. The civility says, let's agree to disagree. Therefore, when I'm speaking my heart, and I'm not towing any line. I have not been paid for this. I have come in my own car. My friend has driven me here. So please do not write in papers tomorrow that I was paid to attend this event. It's an unpaid event. I have not been paid. It's my total opinion, total pure opinion. And I think this gathering is so august enough to take the critique. And therefore, I often teach my students, some of them are here, that there's a difference between critique and troll. Freedom of speech and expression gives you a right to critique, but not to troll. When I'm giving a talk here and you are swearing my mother, you are talking about my girlfriend, then you are trolling. On the contrast, when you have a counter argument, then what is it? It's a critique. Therefore, the Constitution gives you a right to critique, but not the right to troll. In the Constitution itself, in Article 19, it says there are reasonable restrictions. My jurisdiction stops where my nose ends. I cannot play the music system which I have fondly got at night at 2 o'clock in the night. That's not done. So therefore, if there is a fundamental right, there are fundamental duties also. So when I'm speaking from my heart, and I'm speaking truly from my heart. And honestly, I believe that when you speak scripted, it does not resonance with people. So as sir said, I'm always like this. Okay. I had written a Facebook post and which got me into a lot of trouble, but then there were some friends who helped. That even the goat of Gulkak is an agent in Kashmir. Any opinion you have, you are an agent. Sir is laughing. Any damn opinion you have, if a 5-year-old kid has an opinion about a chocolate, he's an agent. If he namak, salt, Pakistani noon to Kashmir noon, Hindustani noon. Even the salt has been divided in Kashmir. We do not have an opinion कि भैया अच्छा टाटा साल्ट खाएगा तो टाटा से आएगा तो ये हिंदुस्तान से आया है, अभी पाकिस्तान से नमक आएगा तो फिर तो पाकिस्तानी है. सॉल्ट, इज इट नॉट ट्रू? वी आर सच कॉन्फ्लिक्ट. इतना कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, इतना कॉन्फ्लिक्ट है कि ट्रैफिक रूल्स कोई फॉलो नहीं करता, ट्रैफिक लाइट्स कोई फॉलो नहीं करता. यू नीड टू हैव अ मैन विद अ गन ऑन अ 4-way, तब जाके ट्रैफिक फॉलो करते हैं. ये कॉन्फ्लिक्ट हमारा हो गया है डेली में. कॉन्फ्लिक्ट इन कश्मीर इज नॉट ओनली अबाउट किलिंग समबडी. It's not. Conflict has percolated into our brains, into our homes, into our kitchen, into our television, into our washroom, into our bedroom. Conflict. Anyways, Kashmiriyat, the topic, Kashmiriyat. Kashmiriyat is not a legal term. It's not written in a constitution, right? And I have a friend. She said she was from Delhi. She said, "Oas, what the hell are you talking about Kashmiriyat? There is nothing like Kashmiriyat. फिर तो बिहारियत भी होगी, हाँ? क्या बोल रहे हो कश्मीरियत? I'll tell you what Kashmiriyat is. I'm a 90s born kid. I'm a 90s kid. मेरा स्कूलिंग जो था वो 90s में हुआ था. मैं मिंटो सर्कल स्कूल में पढ़ता था. मेरा टीचर था प्यारेलाल सर, प्यारेलाल पिंडता. और मैं क्या करता था, मैं घर से आता था और वो पढ़ाते थे मेरे स्कूल में, फिर उनके घर जाता था. मैं बैठता था वहाँ पे. पीपल से माई लैंग्वेज इज़ गुड, इट्स बिकॉज ऑफ दैट ग्रेट टीचर. जब वहाँ बैठता था, घर से बीफ लाता था मैं. पंडित दे सकते, पंडित्स डू नॉट ईट बीफ, बट आई टेल यू माई टीचर. मैं घर से बीफ लाता था पका के प्लेट में. प्यारेलाल सर वुड टेक ऑफ दैट थ्रेड, ही विल टेक ऑफ दैट थ्रेड, और फिर हम दोनों खाना एक साथ खाते थे वो. और जब अजान होती थी तो मेरे को पता नहीं, छोटा बच्चा था मैं, तो ही वुड से कि वैस यू हैव टू वेट व्हेन देयर इज अजान, यू हैव टू वेट. व्हाई? क्योंकि रिस्पेक्ट होता है. सो ही टॉट मी अबाउट इस्लाम. I swear by my mother, he would give me literature on Islam. That is Kashmiriyat.
दैट इज़ कश्मीरियत. मैं आई लिव इन ओल्ड टाउन बारामूला. वहाँ पर एक देर इज़ गुरुद्वारा छवि पातशाही, देर इज़ अ टेम्पल, देर इज़ अ मॉस्क, एंड on the occasions of Eid we'll play cricket. All my friends were Sikhs. So I would get more जब हमारे दो ही बड़े दिन ईद के होते थे, मुसलमानों के कम होते हैं, सिख भाइयों के ज़्यादा होते हैं, तो मेरे उनके कपड़े आए मेरे कपड़े होने चाहिए थे. दैट इज़ कश्मीरियत. जो लोग कहते हैं ना कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है कश्मीरियत, क्या होता है? दिस सोशल फैब्रिक, दिस ईटिंग फ्रॉम द सेम प्लेट, दिस playing in the same playing ground, this reading the same books, this intermingling of culture is Kashmirian. And I can understand that somebody from Delhi who has not lived in Kashmir will not be able to understand it. And so would not somebody from Islamabad. He would not be able to understand this. Only people like me, people like you who live here will understand Kashmiriyat. Anyways, जैसे कि हम यहाँ पर क्या है, न्यूट्रली बात नहीं कर पाता है कोई कि आर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स, हमें यही सिखाया गया हमेशा. राहुल पंडिता ने किताब लिखी है, मैंने पढ़ी है, तो हम कहते हैं तो झूठ है, ये किताब जो है गलत है. ऐसा तो हुआ ही नहीं है, मॉस्को से तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, और मैं छोटा था, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ था उस टाइम, तो ये तो झूठ है. राहुल पंडिता ने जो लिखी है वी ब्रश हिम असाइड, ही इज़ अ लायर, ही इज स्पीकिंग टोटल ब्रश. और जो इसने लिखी है बशारत पीर ने, कर्फ्यूड नाइट्स, वो बिल्कुल गॉस्पेल ट्रूथ है. टॉकिंग अबाउट गॉस्पेल ट्रूथ्स. व्हाट इज अ गॉस्पेल ट्रूथ? कि आपका नैरेटिव सही, मेरा नैरेटिव गलत. आप जो कहते हो वो सही, जो कश्मीरी मुसलमान कहे, मैं कश्मीरी मुसलमान हूँ, प्राउड मुस्लिम, एक कश्मीरी मुसलमान जो कहे वो सही, जो कश्मीरी पंडित कहे वो गलत, क्योंकि वो माइनॉरिटी में. तो बाहर उल्टा कर दो, इन यूपी उल्टा कर दो वहाँ पे, कि वहाँ पर जो मुसलमान बेचारा कहेगा वो गलत, ठीक है, और जो हिंदू कहेगा वो सही. मेजॉरिटेरियनिज्म ये बड़ा डेंजरस है हर जगह, कि नैरेटिव पेंट कर दो आप सब चीज़ों को. नहीं कर सकते पेंट हम चीज़ों को, जो गलत है वो गलत है. Irrespective of offenses, what is wrong is wrong. A rape of a Kashmiri woman is wrong by whomsoever. A rape of a Kashmiri Pandit lady is wrong by whomsoever. Wrong. She also has a dignity. My Parallel sir taught me English. जब एक टीचर क्लासरूम में करता है, चाहता है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, Where the mind is held high, रविंद्रनाथ टैगोर. तो टैगोर क्या था? टैगोर पोइट था. टैगोर is no more Hindu. When I walk into my classroom, I am no more a Muslim. I have to rise up beyond this religion. मुझे ऊपर चढ़ना है बहुत. वहाँ पर एक सिख बच्चा है, वहाँ पर एक पंडित बच्चा है, वहाँ पर एक मुसलमान बच्चा है, वहाँ पर एक ट्राइबल बच्चा है, वहाँ बैठा है मेरा दोस्त, मैं पढ़ाता हूँ उसको, उस स्कूल में पढ़ाता हूँ. और वहाँ पर हम क्या करते हैं? I have to rise up beyond. A teacher is a teacher. You can't kill him because simply he has a religion. He comes from, I am a Muslim because I was born in a Muslim family. So therefore you will kill me for that. What nonsense. What is happening in Kashmir? ये स्पैर हम बोल रहे हैं कि पंडित्स को मार रहे हैं, या सिख्स को मार रहे हैं, नॉन लोकल्स को मार रहे हैं, फिर उसको रिलीजियस कलर दिया जाता है. भाई साहब, अभी एक नॉन लेबरर को मारा, नॉन लोकल लेबरर को मारा, वो मुसलमान था. They don't see, the bullet doesn't see, it kills. It simply kills. Therefore we have to rise up against this stray bullet. कि भैया ये गलत हो रहा है, कि जो अभी मर गए बेचारे, इतने सारे मर गए, और I didn't dare to go to the teacher's house. I'm a teacher myself. What would I tell him? मेरे दोस्तों, नो एलिबाई. अगर एक 90s में क्या हो गया कि हमारे साइड से एक मकान हुआ करता था, हम क्रिकेट खेलने जाते थे, और फिर वहाँ पर हम अनार की चोरी करते थे. किड्स, स्मॉल किड्स, ये दपाना से बड़ मकान, यह बड़ मकान एट करो चूर. इट वॉज वैंडलाइज्ड. What you tell me in 90s, अगर आपका कोई हमसाया दिल्ली जाता है, या पाकिस्तान जाता है, या लंदन जाता है, क्या आप उसके घर को वैंडलाइज करोगे? Would you vandalize his home? Is that what you're supposed to do? Is that what Kashmiriyat is? हम लोगों ने क्या किया उस टाइम 90s में, क्या किया मुझे नहीं पता है कौन लोग थे, उन्होंने क्या किया, बट द रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ऑन अस. डेफिनेटली इट वॉज ऑन अस. एक मकान था 40 मकानों में, दैट वॉज अ कश्मीरी पंडित मकान. वी शुड हैव प्रिजर्व्ड इट. डेफिनेटली वी शुड हैव प्रिजर्व्ड इट. ये कैसी बात हो गई कि हम उसको वैंडलाइज करके चले गए? नो एलिबाई. मेरे दोस्तों, ये सुनना ये बात कि कोई भी एलिबाई, कोई भी रीज़न हम नहीं दे सकते. हाँ, हम कहेंगे कि 30 तो मुसलमान मरे, ठीक है, 5 ही तो आप हिंदू मर गए, तो क्या हो गया, हम भी तो मर रहे हैं. लेकिन कोई भी रीज़न, कोई भी चीज़ जस्टिफाई नहीं करेगा इसको कि अगर हम इनके सोलिडारिटी में खड़े नहीं होते. कोई भी रीज़न उसको जस्टिफाई नहीं करेगा. सो प्लीज़ राइज अप. और जो भी, और यहाँ से फिर से कह दूँ कि सिविलियंस मर गया, एक सिविलियन मर गया परसों, कश्मीरी सिविलियन मर गया, वो भी कंडेमनेबल है. कि आप जब किसी सिविलियन को मारते हो, वो तो कुछ भी नहीं है, यू कुड हैव शॉट एट हिज टायर.
आप सोमो गाड़ी के टायर पर भी तो मार सकते थे, उसको मारने की क्या जरूरत थी? सो देयरफॉर एवरी काइंड ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन हैज टू बी कंडेम्ड। और आप ह्यूमन राइट किसी को देते नहीं हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, राइट? प्लीज मिस्टर। या आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। वो पहला पता है क्या उसका वर्ड है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हमने दिया है उस कॉन्स्टिट्यूशन को, हमने राइट दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट नहीं दिया है। देयरफॉर जो ह्यूमन राइट्स है ये सैक्रोसैंक्ट है। ये हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, स्टेट हो, नॉन स्टेट एक्टर्स हो, सबको इसकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। और जहाँ पर इसके इन्फ्रिंजमेंट होती है उसके खिलाफ एक ही वॉइस में बोलना चाहिए। थैंक यू।